Bismillahirrahmanirrahim. Hello, everyone, and welcome to another fantastic episode. Because today I have an individual who's across me, who's not only a legend but a high-profile name. But he'll give me some permission to talk about him a little bit, and then I'll go on explaining what I have to do. Um, in the very chaotic but entertaining world of media industry, the levels of building product comprises of various structures: an idea, script, breakthrough, direction, production, set design. All of it is heavily vested upon by professional individuals who contribute to the ever-growing content that we get to witness on either television, cinema. However, the onus of responsibility to somehow communicate or simply put pass the message on to the audience eventually comes down to the performances of an actor who has to pretty much give his all to make sure the content survives, thrives, lives, and is able to complement the subject and pass on the message intended. They study the depth, the profiling, performance, and sometimes months into character study. Rehearsals are put forth in success of a televised product. Some give it their all, while some take it as a job, and very few deal with it as a field of passion. However, the individual in front of me needs no introduction. A perfectionist who has taken Pakistan's name with his acting persona to the highest level of recognition. Combination of any character you can think of is his strength. He fears no concept. He doesn't shy away from any subject and gives in to the demand of compatibility and commitment within any concept, which requires 100% dedication. Anything he has touched or will touch becomes gold. Noman Ejaz, a name known to many, is a pride of Pakistan, an award winner, and Pakistan is surely proud to have been blessed with the League of Acting Supremacy. And I have to mention his well-known works to re-acknowledge and praise his worth. Being a law graduate, Noman Ejaz commenced his career under the direction helm of Nusrat Thakur, the iconic Mir Balaj of In Dasht, Huzur Bakhsh in Nijat, my ultimate favorite Ye Zindagi, directed by none other than my godmother Sultana Siddiqui, Malangi, Chubhan, the stellar Salar in Noorpur Ki Rani, to the unforgettable Mera Sign, Jal Pari, the critically acclaimed Ullu Barai Farokh Nahi, and of course Aurangzeba, to being a film star in Ramchand Pakistani, directed by Mehreen Jawar and opposite Nandita Das, and now touching the boundaries of web series as well as a two-time Lux Style Award winner and a Pride of Performance Award winner, is regarded the highest stature of award in the country. Is with me. Thank you, Noman bhai. So sorry for the long little intro. Thank you very But much. Yeah, such a great elaborated kind of an introduction. I'm having it for the first time actually. Little bit of correction, whereas the awards are concerned, I don't believe in awards. yes, My award is if somebody gives me respect and smile whenever I come across anybody. That's quite enough for me. That's my award actually. I don't believe in those lohe ka tukdas, which people feel very proud of it. I got my pride of performance long time back in after 21 years of my service. And whereas these Lux and Hum awards are concerned, I think I can't even count them. I mean, they are more than almost equivalent to how many awards shows they had actually somehow or the other. But I don't go and I don't take my awards myself because I have a different kind of a perception about things. Sir, how are you, sir? Rafi ji? नहीं दी थैंक यू. देखिए हम तो जूनियर है, हम छोटे हैं. अगर अपने बड़ों को इज्जत नहीं देंगे और हम उनके काम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर उससे कोई I wish every Pakistani should think the way you are thinking and the way you are saying it. But that's a dilemma which we guys are facing back. I mean, here in Pakistan, बड़े को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है somehow the other. उसको कमानी पड़ती है और कमाना अगर आपको थोड़ी सी मिल रही हो तो आपको कमाने में आसानी हो जाती है, लेकिन बस वो यहाँ पे एक अजीब भेड़ चाल है. We will talk about it definitely as progress with the program. So, Noman, so I'll start off with you. Now you've seen a lot of golden era. You've played different characters. You've given it all. You're coming from someone who's also worked hard in this industry as well. तो आपको कैसा लग रहा है कि आज के टाइम पे जो आपने देखा है, how has the content progressed? How have characters progressed, and how are we standing? People in Karachi, because the hub has moved to Karachi, people of Karachi and the actors and people from the fraternity, from the showbiz media world, everybody thinks there's a great growth which took place for the last 15, 20 years, whereas drama industry is concerned. I don't believe that. It's not the growth.
It's the volume. The volume increased. The growth didn't. Growth. I define growth as if we are doing experiments on different issues. We didn't. We just what we did. We caged the entire drama within one premises. I mean, within one cage. Actually, we don't want to go. I mean, our drama. I mean, if you check our drama on where YouTube or anywhere, or even in on our televisions, you will notice this that our characters they start walking from lounge to drawing room, from drawing room to kitchen, from kitchen to bedroom, and from bedroom it ends. I mean, they don't want to go outside. They don't want to even look outside the window. What is happening outside the window? कितनी की कहानियां बना लेंगे वो घरों के अंदर रह के कितने के issues discuss कर लेंगे. Almost all the issues are similar. I mean, if you check the drama, अगर आप गौर से देखें तो आपको वो सारे issues हाँ slightly twist किए हुए लगते हैं, but they are all the same. We are not working on there are too many social issues in our society right now, and if we start exploring them, I think we can do a brilliant job. But somehow or the other, because of some kind of limitations which are being put by the channels, because they are only interested in the so-called rating, and they feel कि औरत की तस्लील करो, उसको ह्यूमिलेट करो, उसको मारो, उसको पीटो, बिकॉज मोस्टली औरतें ड्रामा देखती हैं, औरत को गलत दिखा दो तो हमारा ड्रामा हिट है. दिस इज व्हाट दे हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स नाउ, एंड आवर ड्रामास वो उनसे साफ पता चलता है. देयर इज नो रिस्पेक्ट एलिमेंट. चीखो पुकार है ड्रामे में, बदतमीजी है ड्रामों में. अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे, आप अपना ड्रामा उठा के देख लीजिए, हम किस नहज पे ड्रामा ले गए हैं, और जबकि हमारा ड्रामा वाज सेड टू बी बेटर देन द इंडियन मूवीज एक्चुअली, बट नाउ वी आर नोवेयर. 5 सालों में 10 सालों में अगर 2 या 3 ड्रामे हिट हो जाते हैं जिनकी बात की जाती है, this is not a good score. That's what I believe in. So from my era, I mean, when I started working, उस जमाने में ड्रामा एक डिफरेंट नौयत का ड्रामा था. I mean, I give you an example of Nijat, which you just quoted, खुदा बख्श of Nijat. Nijat का इशू क्या था ड्रामे का? Asghar Nadeem Sayyid wrote it down. The 3 issues which we discussed in that drama was family planning, jali adwiyat, right? And thirdly, what is happening in the madrasas. Still, we are facing those 3 issues since 1992-93 till today. If we talk about, these are the only 3 issues. अब तो इन 3 issues पे ड्रामे बनते ही नहीं है. Nobody wants to touch these 3 issues. So, पाकिस्तान में ड्रामा जैसा बन रहा है, जैसा चल रहा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही बनता और चलता रहेगा. अच्छे ड्रामे आ जाए, किसी को कोई पसंद आ जाए और वो उसको ग्रेड ऊपर कर दे, दैट्स अ सेपरेट इशू. बट ओवरऑल बीइंग अ मीडिया गाय, आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ अ प्रोग्रेस जो कि होनी चाहिए थी. हाँ, हमारा इक्विपमेंट लेवल हमने वो तो जरूर अपग्रेड कर लिया है, और हम उसकी अपग्रेडिंग करके उसको हम बना तो रहे हैं. पिक्चर आपको अच्छी दिखाई तो दे रही है, बट उसका कंटेंट क्या है उस पे नोबडी इज वर्किंग जिस तरह काम होना चाहिए था इतने सालों में. एब्सोल्युटली. तो चले वो मैं आई डू एग्री विथ यू, बिकॉज यूथ भी हमारी काफी डिफ्लेक्ट हो गई है वाचिंग दिस कंटेंट, एंड वी हैव वेरी प्राइमरी सोर्स. बट आई मीन इफ यू हैव वर्कड ऑन वेरी स्टेलर कॉन्सेप्ट्स एंड स्टफ, you बताएं. राफी, we have mobiles in our hands, right? आपके हाथ में पूरी दुनिया है. अब आपके हाथ में नेटफ्लिक्स है, आपके हाथ में प्राइम अमेजोन है, आपके हाथ में और जितने बड़े वेब्स हैं वो सारे आपके हाथ में आ गए हैं. कंपटीशन बहुत बढ़ गया है. You have to think out of the box now, but nobody is thinking out of the box. हमारा ड्रामा ठहर गया है. Abhi, for the first time, as we guys are working for the web for Z5, the kind of problems which we guys were facing, like we don't have writers who can write down for web. We don't have directors who can direct for web. We don't have actors who can act according to what web actors should be, the way web actors should be working. We have to unlearn all those things, and we have to learn what is happening now. The writers need to write down the conversation, which they can't. हमारे writers, they can't write conversation.
दो कैरेक्टर्स के दरमियान की कन्वर्सेशन नहीं, वो डायलॉग बाजी लिखते हैं. डायलॉग बाजी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेब. You need to pick up the issue and you have to talk about the issue, and every scene should be interconnected with each other, which we are writers, they are not used to it. So they have to unlearn, they have to watch everything. देखते तो हैं, मिसालें भी देते हैं, लिख नहीं पाते हैं वैसा. So they need to be trained. That's what I believe. All of us. नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. लेकिन मैं जो पूछा था आपसे कि अगर आपने इस तरह के हिंड्रेंसेस अगर यू कम अक्रॉस इट, नाउ यू आल्सो गेट टू मीट नेटवर्क एग्जीक्यूटिव्स, यू आल्सो गेट टू मीट प्रोड्यूसर्स, डू यू ट्राई टू गिव योर फीडबैक टू देम, डू यू ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड वेयर आर वी हेडिंग, आर वी नॉट गोइंग, और आर वी नॉट लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग? Yes, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम, द बिगेस्ट इशू विच वी गाइज आर फेसिंग इज we don't have broadcasters to understand us. पहले ड्रामा बनता था, क्रिएटिव लोग बनाया करते थे ड्रामा. आज कैलकुलेटर बनाता है ड्रामा. आज एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, कंटेंट हेड, वो कहता है ये इतने में कॉस्ट कर रहा है, ये इतने में बनना चाहिए. दैट इज इट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन what is going to happen in it. If you see our dramas, majority, you won't find seasoned actors anymore. Very little. Why? चलो, एक तो हालात ऐसे हो गए, मीडिया 2 साल से डिप में चला गया. But what is the other excuse? I mean, how the youngsters gonna learn? I mean, ये एक पूरा vicious circle है. सही. हमारे दौर में तो देखो, before these private channels they came in, चारों सूबों से ड्रामा आया करता था, from all the 4 provinces. आपको हर सूबे की सकाफत का पता चलता था, रिवायतों का पता चलता था, फोक स्टोरीज का पता चलता था. आप घर बैठे वो ड्रामा देख के आपको इतनी नॉलेज मिल जाती थी कि अच्छा बलूचिस्तान में ये होता है, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में ये होता है, पंजाब में ये होता है. आज का ड्रामा आपको क्या बता रहा है? वो उसके साथ फंसी हुई थी और वो उससे शादी कर बैठी और वो उससे रिवेंज ले रहा है, उसकी माँ उसके खिलाफ है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर वी डूइंग? आपका ड्रामा खत्म है. ये आपको जागना पड़ेगा. आई थिंक एवरीबडी इज स्लीपिंग. वो चाहते हैं कि इस डब्बे का पेट भरते रहो बस. आपने अपने ऑडियंस, आपका ऑडियंस आज नेटफ्लिक्स देखता है, प्राइम अमेजॉन देखता है. आप उसको अच्छा दो, वो वापस आए. आप उसको अच्छा दे ही नहीं पा रहे हो. आप प्राइवेट प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते. Okay. You are responsible. The broadcasters are responsible for whatever they are doing. I remember you quoted Sultana Appa when she made her first private production, which was Ye Zindagi. Yeah. I was a part of it. खुला Yeah. के ऊपर था. Yeah. इतनी दुनिया खड़ी हो गई थी, ये क्या है, ये क्या है. एक बामकसद ड्रामा था, उसमें लोगों को बताया गया था बहुत सारी चीजें, लोगों को अवेयरनेस दी गई थी. आज का ड्रामा क्या अवेयरनेस दे रहा है यार? कहीं होता है कि माँ बेटे के खिलाफ हो, या बेटा बाप से रिवेंज ले रहा हो, या बाप बेटे से रिवेंज ले रहा हो, या माँ बेटी से ले रही हो, या बहू से ले रही हो? ये कहाँ होता है? अब नहीं होता है. ये होता होगा, बहुत कम घरानों में होता होगा. आप अपने ऑडियंस को एजुकेट ही नहीं कर रहे. आप जब दिखाएंगे ही गलत, तो घरों में होगा गलत. मैं जाती तौर पे पता क्या समझता हूँ? आर मीडिया शुड बी हैंग्ड. दे शुड बी हैंग्ड because they are not educating the viewers, the audience. They are not giving them the best. They are just giving them because they feel कि ये इनके दिमाग, आपके ऑडियंस के दिमाग इतने ही हैं. इतने नहीं हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, बड़ी वसत आ गई है सोच में, अप्रोच में. लोग बहुत प्रोग्रेसिव होते चले जा रहे हैं. बट आपका मीडिया नहीं है प्रोग्रेसिव. आपका मीडिया वहीं फंसा हुआ है. आपका मीडिया वहीं फंसा रहेगा. वी रियली नीड टू रीडू एवरीथिंग. अगर नहीं कर पाएंगे तो आई एम टेलिंग यू, इट इज नेवर गोइंग टू वर्क. Okay, fair enough. नहीं, I hope, I mean, when we have people like you associated, I'm sure कि वो noise होगा. मैं अगर एक्टिंग की तरफ आता हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि कंटेंट वाइज हम काफी गिर गए, तो एक टाइम पे एक्टिंग और कंटेंट समझ के रिहर्सल्स या कैरेक्टर के डेप्थ में जाना भी एक पार्ट होता था. डू यू स्टिल कंटिन्यू दैट? इज इट बिकम लाइक
आज कैसी कास्टिंग होती है? मैं आपको एक बड़ा मजेदार सिस्टम बताता हूँ। हमारे दौर में कैसे कास्टिंग होती थी। हमारे दौर में ऐसे होता था कि प्रोड्यूसर एक वन लाइन सोचता था, राइटर को इंगेज करता था, एक डायरेक्टर को इंगेज करता था, वो डायरेक्टर के साथ बैठ के अपनी वन लाइन डिस्कस करता था, एक राइटर को मार्क किया जाता था, उस राइटर के साथ बैठ के वो वन लाइन डिस्कस की जाती थी, फिर प्रोड्यूसर हट जाता था और राइटर और डायरेक्टर बैठ के उसको पूरे को बनाते थे। जब वो पूरा बन जाता था उसके बाद बैठ के उसके ऊपर कास्टिंग होती थी। कास्टिंग होने के बाद उसको शूटिंग पे ले जाया जाता था। जब वो तैयार होता था तो चैनल को पिच किया जाता था। आज क्या होता है कि चैनल आपको बुला के कहता है ये स्क्रिप्ट है, ये कास्ट है, बना लो। अब वो चाहे वो जो एक्टर उसने लिया है वो कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट बिकॉज वो कॉस्ट के अंदर आ रहा है, चाहे वो बर्बाद कर दे उस रोल को, बट क्योंकि वो कॉस्ट के अंदर आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। और या वो उनको इजीली अवेलेबल है। सो यू सी, हम ड्रामा किसी बाहर से किसी ने आके बर्बाद नहीं किया है। ड्रामा हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुद बर्बाद किया है। हम अपने दुश्मन खुद हैं माशाल्लाह। हमें किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड एनीबॉडी। Yes, sure. अच्छा, and speaking, you're talking about this thing, लेकिन I mean, क्या हम somewhere in the middle did we lose the ground of being professional? Did we somehow, I mean, were we professional? या कुछ issue हो गया है, professional नहीं है? Excuse me, राफे, the word professional वो हमारे यहाँ लागू नहीं होता। हमें तो पता भी नहीं है इसका मतलब क्या है। We don't know. We don't know. Trust me, we don't know. हमारे ब्रॉडकास्टर को नहीं पता, हमारे प्रोड्यूसर को नहीं पता, हमारे एक्टर्स को नहीं पता, बहुत सारे एक्टर्स को नहीं पता। शायद होंगे प्रोफेशनली, एक आधा कोई होगा, एक आधे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोफेशनल काम क्या होता है। प्रोफेशनल काम में सॉरी नहीं होती। उनको यही नहीं पता कि प्रोफेशनल काम में सॉरी नहीं होती। हमारा तो सारा काम ही सॉरी की बुनियाद पे है। ये क्यों नहीं हुआ? सॉरी वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर ये किया क्यों है? वो कॉम्प्रोमाइज कर गए। हम तो कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं सारी चीजों के साथ। हमें तो प्रोफेशनल डीलिंग करनी नहीं आती। हमारे यहाँ जो प्राइवेट प्रोड्यूसर का चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कोई पढ़ ले तो वो मेरे ख्याल में वो कहे कि मेरे ऊपर से ट्रेन गुजार दो, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़िएगा कभी। हमारा प्रोड्यूसर 4-4, 5-5 साल एड़ियां रगड़ता है अपने एक प्रोडक्ट का पैसा निकलवाने के लिए। और जिस प्रोड्यूसर ने किसी ब्रॉडकास्टर से 4, 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ रुपया लेना है अपने प्रोडक्ट्स का, वो उसके दफ्तर में जाके यूं हाथ जोड़ के ना उसके घुटने पकड़ा था कि अल्लाह का वास्ते मेरे पैसे दे दो। ये तो हाल है इस मुल्क का, ये तो हाल है यहाँ के प्रोफेशनलिज्म का। बिकॉज पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क, वो बैठे हुए, वो बदमाशों की तरह बैठे हैं। एक और बना के लाओ, फिर पिछले का देंगे थोड़ा सा। I know who you're talking about. I know who you're talking about. मुझे अंदाजा है इसका। नहीं, लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ कि you are a senior actor. You have a voice. You are loud. We have associations for this purpose. तो I tell you, हमारे यहाँ अकेले की कोई आवाज नहीं होती। पहली बात तो ये, हमारे यहाँ बॉडीज बनने नहीं दी किसी ने। हमारे यहाँ जो बॉडीज बनी भी हैं तो उन लोगों ने अपने जाती मुफाद के लिए काम किया है। हमारे यहाँ यकजहती नहीं है, यूनिटी नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। जब तक उसको खुद आग नहीं लग जाती वो चीखता नहीं है। हमारे यहाँ बहुत मसाइल है। मेरी जुगाड़ फिट हुई भी है किसी एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी के साथ खड़े होने की? भाड़ में जाए वो, लेट हिम सफर। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ 90% ऑफ द पाकिस्तानीज वर्किंग इन पाकिस्तान। इट्स अ बैड पिक्चर। नहीं, it's very sad to hear it. You know what? Sometimes I feel that people don't like too much of truth, but this is the truth. This is the hardcore truth, and nobody can deny from this fact.
They might say कि नुमान इजाज whatever he's saying, he's doing this and he's doing that, but गलत साबित करो मुझे. This is an open challenge. नहीं नहीं भाई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिकॉज छोटे से टाइम पे जब मैं भी व्हेन आई वाज अफिलिएटेड विद द इंडस्ट्री, तो मैंने बड़े मसले देखे, और मैं बड़ा आई ट्राई टू स्पीक टू द नेटवर्क एग्जीक्यूटिव. आई यूज्ड टू बी लाइक, क्यों हो रहा है? तो वो कहते थे कि हाँ, जिस तरह चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू होगा तो इंडस्ट्री गिर जाएगी. मतलब कि मैंने सुना, आई आस्क्ड द सीनियर्स, तो मैंने बोला आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप फिक्स करो. बट वो फिक्स नहीं नहीं होता है. तो वो फ्रस्ट्रेशंस आपके यूथ में नजर आ रही है मेरे थ्रू. बट आपको पता है कितने बैच निकल चुके हैं फिल्म मेकर्स के इन सो कॉल्ड यहाँ की यूनिवर्सिटीज और जो कोर्सेज करवाते हैं फिल्म मेकिंग के, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? इतने इतने पैसे देके उन बच्चों ने फिल्म मेकिंग सीखी है. कहाँ है फील्ड? कहाँ मिलती हैं उनको अपॉर्चुनिटीज? रुल रहे हैं. कोई प्रोड्यूसर है किसी करंट अफेयर के प्रोग्राम का, कोई असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डू एनीथिंग. Where are the opportunities? Why these kids are wasting so much of money? Why these institutions are getting so much of fees from those poor kids? क्योंकि वही वाली बात है कि एक दौर में कहा जाता था कि वकालत को, एक दौर में ये जब मैंने वकालत की, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि दो ही प्रोफेशन थे, आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, या सीएसएस का इम्तिहान दे दें. ठीक है, तो वकील को कहते थे कि जिसको कुछ नहीं मिलता ना, कहीं एडमिशन नहीं मिलती, वो वकालत कर लेता है. ऐसे ही है आज. यही कहा जाता है किसी को कहीं, दैट्स आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, आई विल बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट विद यू. अब जिसको किसी कुछ नहीं मिलता, फिल्म मेकिंग करनी है यार. फिल्म मेकिंग मजाक नहीं है. या एक्टिंग करनी है. हमारे सेट्स पे प्रोफेशनल जिसको आप काम बोल रहे हैं, उधर एक ऐसा लड़का जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती, हमारा प्रोड्यूसर लाके उस लड़के को ऑडियो के वो हेडफोन्स पहना के बिठा देता है, और उसको कहता है कि लाहौर से भी स्कूटर या गुजर गया ना मोटरसाइकिल, तो तू कट बोल दे, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए. उसको नहीं है एक्सपीरियंस. ऑडियो कंट्रोल कैसे करते हैं, ऑडियो बहुत कम है लड़के. मेरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम काम करते हैं. तो जब ऑडियो कोई खराब हो जाए और उसके बाद वो कहे कि सर ये इसकी डबिंग करनी पड़ेगी, तो हम उसकी पतलून उतार देते हैं. क्यों डबिंग करनी पड़ेगी? जब कर रहे थे तो क्यों नहीं बोला तुमने? जब कर रहे थे तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं तुमने पॉइंट आउट किया कि सर लेट्स डू इट अगेन, एंड वी वुड हैव डन इट अगेन. ऑडियो का वो डबिंग का वो मजा नहीं आता. आपने जो नेचुरली बोला होता है, आप कुछ भी कर लें वैसा नहीं कर पाते. इट्स नॉट अ फिल्म. ड्रामा इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. सो समहाउ द अदर वी हैव these issues. वी हैव, हमें हमारी बदनीयती और बददियानती, वी आर नॉट ऑनेस्ट विद आवर वर्क इवन, वो हमें मार रही है. और ये खैर पूरी नेशन को ही मार रही है, और वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. चलिए, फेयर इनफ. लेकिन अभी आपने ये जो बात की यहाँ पे सेट्स पे आने वाली है, हाउ आर यू सीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर टू एक्टर? यू सीइंग यंग एक्टर्स, यू सीइंग ओल्ड एक्टर्स. हाउ आर यू सीइंग द प्रोग्रेशन हैपनिंग विद पीपल कमिंग ऑन बोर्ड? इज देयर अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट? आर यू सीइंग देम बीइंग सीरियस? मैंने एक दो लोगों से बात की तो मुझे बोलते हैं आजकल हाथ में सेलफोन होता है, आजकल इंस्टाग्रामिंग हो रही होती है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है. व्हाट हैव यू विटनेस्ड इन योर टाइम एंड हाउ इज इट टेकन सीरियसली? देखो वही वाली बात है राफे. व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क, ये फोन शोन ये चीजें नहीं होती थी. एक अदब का एलिमेंट होता था. मेरी कभी जरूरत भी नहीं होती थी कि मेरा डायरेक्टर कमरे में आया और मैं कुर्सी पे बैठा रहा हूँ. मुझे एहतरामन खड़ा होना पड़ता था. कोई सीनियर आई है खातून, मेरी जरूरत भी नहीं होती थी. ट्रीट है कि मैं के कुर्सी पे बैठा हूँ और वो खातून आई है, वो कोई भी है, छोटी है बड़ी है, वट एवर, वी यूज टू गिव रिस्पेक्ट. वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है यंगस्टर्स के अंदर से. दीज ऑल यंगस्टर्स शुड नीड टू बी ग्रूम्ड. हमारे यहाँ एकेडमीज नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ पे ये सिखाई जाए चीजें, और साथ ये भी सिखाया जाए कि सेट पे बिहेव कैसे करना होता है. हर चीज का एक डिकोरम है, एक मैनरिज्म है. छुरी कांटे से कैसे खाना खाना है, ये सीखना पड़ेगा आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें. हम कहते हैं कि नहीं हमें सब पता. हमारा यंगस्टर्स स्पेशली हैं, कुछ यंगस्टर्स बड़े अच्छे हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर एल्डर्स. हमारे दौर में डायरेक्टर कुर्सी पे बैठता था और हम
उसके घुटनों के पास बैठ के उनसे पूछा करते थे, सर ये क्या लिखा है, सर इसको कैसे बोलना है। आज नई लड़की आती है तो वो कुर्सी पे बैठती है और डायरेक्टर घुटनों पे बैठ के कहता है कि कितनी देर में सीन कर लेंगी आप, तो वो आगे से कह रही होती है कि मुझे ये 10 मिनट दें, मैं ये एक फोन कॉल कर लूं, या मुझे शाम को 7 बजे चली जाना है, मुझे जल्दी फारिग कर दीजिएगा। सो अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट एवरीथिंग, मॉरल वैल्यूज, रिस्पेक्ट, नॉर्म्स नहीं है पता यंगस्टर्स को। बहुत कम बच्चे हैं जो बाअदब हैं, और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ उन्हीं बच्चों को फल लगता है, उन्हीं लोगों को लगता है जो झुकते हैं, जिनको बड़े का अदब आता है somehow the other। बट लेट्स सी, ये चीज बढ़ती चली जा रही है। अब तो मेरे ख्याल में जो यंगस्टर्स आ रहे हैं 19 या 20 साल के लोग, उनको नहीं पता है कि कबीर खान साहब कौन है, फरदास साहब कौन है, नुमान साहब कौन है। वो बस एक अजीब सी ही दुनिया से आए हैं बच्चे, एंड मोस्टली बिकॉज टिकटॉक में वो पॉपुलर हो गए और मशहूर हो गए। सो इस तरह का बहुत सारा टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर के चैनल्स वेलकम करें, बिकॉज दे आर कॉस्टिंग देम वेरी लिटिल, and I know quite a few actors who are working on monthly wages as well. So जब वो कहते हैं कि यार जाके आपको इतने पैसे मिल जाने हैं, तो व्हाट्स द, आई मीन लेट्स डू इट। शोहरत की शोहरत है, टीवी पे भी आप आ रहे हैं, पैसे भी आपको आपके उसके मुताबिक मिल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो जहालत टुक ओवर, राफे, जहालत टुक ओवर, दिस इज व्हाट आई से। अगर फर्ज करें आप कल खड़े हो गए, अगर आपने किसी एक्टर के खिलाफ बोल दिया, और अगर किसी प्रोडक्शन हाउस ने बोल दिया कि हाउ डेयर नुमान अजाज स्पीक अगेंस्ट एन एक्टर एंड वी विल बैन द एक्टर। I never try to become a part of any controversy for this particular reason, because अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। दूसरी बात ये कि जब ये पता चल जाए कि बड़े की रिस्पेक्ट देने वाले अब खत्म हो गए हैं, एक तो सबसे बड़ा जो अलमिया इस मुल्क में हुआ है, ये सोशल मीडिया आ गया। ये सोशल मीडिया पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये सोशल मीडिया पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की किरदार कशी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की धज्जियां उखेड़नी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी पॉजिटिव चीज के लिए नहीं इस्तेमाल होता। मैं अगर कोई स्टेटमेंट दे जाऊंगा ना, तो आप यकीन मानिए इस बात का कि उस स्टेटमेंट के ऊपर बहस नहीं होगी, नुमान इजाज के किरदार पे बहस होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तो यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि किस चीज के लिए बात करनी है और किस चीज के लिए बात नहीं करनी है। आपने उस स्टेटमेंट पे तो बहस करनी है कि नहीं कौवा काला होता है, हाँ कहीं नुमान भाई अगर कह रहे हैं कि सफेद होता है, हाँ तो हाँ होता होगा, फला खित्ते में होता होगा, या उधर की ये क्लाइमेट इश्यूज हैं तो इसलिए सफेद होता होगा। लेकिन हमने जो देखा वो नहीं, वो कहेंगे नुमान भाई उल्लू के पट्टे हैं जिन्होंने ये बात की है, उन्होंने अपनी कभी शक्ल देखी है, उन्होंने अपनी कभी हरकतें देखी। वो स्टेटमेंट पे नहीं बात हो रही होगी, वो नुमान भाई की किरदार कशी पे बात हो रही होगी। कोशिश हो रही होगी कि नुमान भाई की कोई पुरानी चीज ऐसी निकाल के लाएं ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे नुमान भाई जलील और ख्वार हो जाएं और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। अगर कोई स्टेटमेंट हमें पसंद नहीं ना आती, तो हम कहते हैं कि इस आदमी का तो जीना हराम कर दो, इसको मार दो, ये जिंदा कैसे है, इसने ये बात कही कैसे, जबकि मैं ये बात यूं है ये बात। सो हमारी मर्जी के बगैर हमें पहले तो अपने अंदर एक टॉलरेंस लेवल पैदा करना पड़ेगा कि सारी दुनिया की चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती हैं, प्लीज फॉर गॉड से। और हेल्दी गुफ्तगू में पार्टिसिपेट करें, नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालें। हमारे अंदर नेगेटिविटी राफे कूट कूट के भरी हुई है। हम जेनेटिकली नेगेटिव हैं, हम जेनेटिकली झूठे हैं, हम जेनेटिकली करप्ट हैं, वी कांट हेल्प इट। और इतनी सारी जेनेटिक इश्यूज के बाद हम कहते हैं कि दुनिया में हमारा इमेज भी अच्छा हो जाए, दुनिया में हमें लोग तस्लीम भी कर लें, और हमारे काम का डंका भी बाजे। और ये कैसे मुमकिन होगा, मुझे कोई ये बता दे। फेयर इनफ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। सो सर, अगर आप बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया के गटर में फंसे हुए हैं और चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जाती हैं, बहुत रिसेंटली मैंने भी देखा कि यू आर अगेन कॉट इन सम कंट्रोवर्सी विद सेइंग समथिंग अबाउट एन एक्टर एंड इट गॉट वेरी हाईलाइटेड। People are saying that it was done on purpose. People are saying, oh, these actors get together, they hype each other out by speaking like that. I mean, is it actually true? Is that actors get together for? देखो, my contemporaries, me,
actors of my era, we are like brothers. We are like Right. family members, Right. right? We are. I mean, we've been working for the last almost 30 years each. I mean, अगर आप सबके प्रोफाइल्स चेक करें तो 30-30 साल का तजुर्बा सबका है और हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं. हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है कि इसी गुफ्तगू में से इतनी सी चीज कोई उठा के वो पूरी बात नहीं सुनेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस स्टेट ऑफ माइंड में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, कौन कर रहा है. जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक तबका है जिन्होंने जिनको मैं सो कॉल्ड ब्लॉगर्स जो हैं जिन्होंने इंटरनेट पे वो जैसे मैंने कहा ना कि मैं उस दौर का वकील हूँ. वकालत की जब कहते थे कि Yes. कोई अगर कहीं एडमिशन नहीं मिला तो वकील बन जाओ. तो ये वो ब्लॉगर्स बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने जिनको कहीं जॉब्स नहीं मिली और घर में फारिग बैठे थे तो इंटरनेट मैगजीन्स बना के टक 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 आपकी तस्वीर ली, नीचे एक पप्पू सा आर्टिकल लिखा एंड दे ऑब्वियसली nobody does anything for free, so they Right. charge money from, Yes. and this is how they make their earnings, which is not wrong. But आप जब किसी की कंट्रोवर्सी बनाते हैं तो आप वो पूरी पहले तो बात सुने. इन्हीं ब्लॉगर्स ने जहां जहां ये लिखा, लोगों ने नीचे लिखा कि ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, आप लोग गलत कर रहे हैं. नेगेटिविटी मत स्प्रेड करो यार. But अच्छा चले, if I move forward and if I say that, as an actor, what are some of the themes you would like to highlight this country or this entertainment industry can work on? ये जो हम सास बहू के चक्कर में फंसे हुए हैं, coming from someone like of your caliber. यार देखो, छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं. अभी भी हमारे मदरसों के बहुत सारे इश्यूज हैं. Right. हम किसी डिपार्टमेंट को नहीं टच कर सकते. हम जो क्राइम होता है मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. जैनब का वाकया हुआ कसूर में, Yes. Yes. 3-4 ड्रामे बना दिए इसके ऊपर, Absolutely. 3-4 ड्रामे Absolutely. बनाए. ठीक है, लाउडनेस की तरफ चले गए. आप क्या कर रहे हो? क्या रुक गया? कुछ नहीं रुका. वही हो रहा है, अभी हो रहा है. Absolutely. उतने ही बच्चे सफर कर रहे हैं, उतना ही इस मुल्क में वो सारी चीजें हो रही हैं. कितनी चीजें कम हो गई? कोई कम नहीं हुई ना. सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिनको लेके आप उनको बेस करके वो बना सकते हैं. लेकिन कहाँ चलाओगे आप? आपका ब्रॉडकास्टर आपके साथ नहीं खड़ा हुआ. यूट्यूब पे तो नहीं चला सकते सारी चीजें, यूट्यूब पे तो नहीं चल सकते. सो आपका ब्रॉडकास्टर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा. Right. आपका ब्रॉडकास्टर भी तो आपको सपोर्ट करे ना. आपके प्राइवेट सेक्टर के लोग आपको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, चैनल्स वाले. मैं जो जिस वेब सीरीज पे हम काम कर रहे हैं, 2011 when we designed this project, we pitched it and everybody refused it and rejected it because उसके पीछे एक चीज काम कर रही थी, एक अवेयरनेस काम कर रही थी कि यार ये अवेयरनेस लोगों को दिलानी जरूरी है. लेट्स वर्क ऑन इट. एंड वी डिड रिसर्च ऑन इट. और वो हमने जब पिच किया है, अरे नहीं इसकी तो रेटिंग ही नहीं आती, इसका तो ये है, इसका तो फला है, इसका तो ढमकाना है. जब जी वालों ने हमसे कोई आइडिया मांगा तो हमने जब निकाल के वो उनको पिच किया, दे वेंट क्रेजी. दे सेड वी वांट दिस इज समथिंग न्यू एंड अनयूजुअल. सो क्यों है नहीं ऐसा? तो उसमें मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अहमियत बाहर ज्यादा है, इंटरनेशनल अपील रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है हम लोगों को एज कम्पेयर टू डूइंग समथिंग लोकली, व्हिच इज वेरी सैड द वे इट वर्क्स. बट मैं बोल रहा हूँ कि आप स्पेसिफिकली नेटवर्क एग्जीक्यूटिव से रिएक्शन लेते थे या कंटेंट हेड से आपको मिलता था ये हमारी रेटिंग नहीं आएगी किसी These are channel heads. These are channel heads we are talking about. These are channel heads. I mean, people who are leading the channel, they are not interested in something lucrative, whereas content is concerned. They are only interested कि मसाला होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और बस रेटिंग आनी चाहिए. ਅਸੀਂ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते. We don't want to do it. We don't want growth. We want volume. We don't want something कि जिससे हमारी सोसाइटी एजुकेट हो जाए. We don't want to educate society. Why should we take the headache of that? They are not interested. So then basically
जो देखो डमिंग बात डाउन। बात वही है। बात मुझे मुझे एक छोटी सी बात बताएं। हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और ड्रामा हम दिखाएं जिसमें औरत की तजलील है हर जगह। आप देख लो आपके ड्रामा में औरत की तजलील कितनी होती है। आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लो, औरत पिस रही होती है। चंडा मारो उन्हें, ठुड्डे मारो औरत को, जलील करो उसे, मुख्तलिफ अलकाब दो उसको। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये आपने माइंडसेट बना दिया कौम का ना। दाल खिलाते रहोगे ऑडियंस को, दाल खिलाते रहोगे, वो उसमें थोड़ा सा गोश्त जिस दिन डाल दोगे उस दिन उनका मैदा खराब हो जाएगा। I completely agree. I completely agree with you. Okay, and well, I mean, I'm sure looking forward to the web series which comes. मैं आपसे उस पे आता हूँ। ये बताएं कि एक्टर्स यूनियन का आप हिस्सा हैं? एक्टर्स एक्टर एक्टर्स जो एसोसिएशन एक्टर्स ट्रस्ट है, आर यू पार्ट ऑफ दैट? जी, मैं आपको बताता हूँ ना, हमारी प्रोड्यूसर्स की भी एसोसिएशन है, लेकिन उसमें भी यस। बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। जाती रीजनिंग बहुत सारी पीछे काम करती है। जो भी उसको हेड करते हैं लोग, उनके अपने फायदे हैं और वो किसी के साथ नहीं खड़े होते। पेपर वर्क हल्का फुल्का कर दिया। वो जैसे हिंदुस्तान में है वैसे है नहीं यहाँ पे वो वाला सिस्टम। एक्टर्स की कॉल्ड एसोसिएशन है, लेकिन एक्टर्स ही उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। वही वाली बात है ना, जब तक आपके साथ ज्यादती ना हो तब तक आप बाहर निकलना नहीं चाहते। कोई एक्टर किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। एक सेल्फिशनेस है। हम दुनिया के दूसरे इश्यूज पे तो बहुत बोल सकते हैं बढ़ चढ़ के, लेकिन हम खुद इनिशिएटिव लेके नहीं खड़े हो सकते एक दूसरे के साथ। बहुत कम लोग खड़े होते हैं, जो कि बदनसीबी है। मैंने, नादिया जमील साहिबा ने, फैसल रहमान साहब ने, हमने ये एक्टर्स एसोसिएशन फॉर्म की थी आज से कितने साल पहले, और तरले किए थे, रिक्वेस्ट की थी। वी एक्चुअली बेग्ड ऑल द एक्टर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। उनमें से बहुत सारे लोग बने, उनको समझाई बातें। यूनियन होगी, साथ में सब होंगे तो किसी प्रोड्यूसर के खिलाफ लड़ भी सकेंगे। लेकिन हर बंदा यहाँ पे पता है क्या कहता है? मेरी जुगाड़ फिट है तो मैं क्यों खड़ा हूं? मेरा जो रास्ता हमवार हुआ है, मुझे जो अंडर द टेबल पैसे मिल जाते हैं, तो मैं ओवर द टेबल बैठ के आप लोगों के साथ क्यों नेगोशिएट करूं? सो nobody wants to come in the bad books. That's the issue with everybody. Fair enough. And And no, and honestly speaking, if you ask any other actor, if you will interview, उनके जुमले बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं आपसे वो कह रहा हूँ जो हो रहा है। मैं तो पॉलिटिकली कह सकता हूँ जी हमारी एसोसिएशन है और हम बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट कर, ये है पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि हम बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई बात हो जाए हम खड़े हो जाते हैं। किसी प्रोड्यूसर ने अगर किसी एक्टर के पैसे मार लिए हैं और बाकियों को मिल गए हैं, तो वो बाकी जो हैं वो बिल्कुल मिलके उस प्रोड्यूसर के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फेयर इनफ। तो which brings me to my point कि इस वक्त कोविड का जो माहौल फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर और शूटिंग्स हो रही हैं कोविड में, एक्टर्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड, यू थिंक दिस इज राइट टू गो ऑन विद शूटिंग राइट नाउ कंसीडरिंग द पार्ट दैट देखो बात पता क्या है, देखो ये यहाँ पे ना दो तीन सिचुएशंस आके फंस जाती हैं। पहली बात तो ये, जितना दो दो ढाई ढाई महीने से लोग सब रेजिस्ट कर रहे थे एक्टर्स, चलो समहाउ दी अदर फिर भी उनके पास कुछ रिजर्व्स होते हैं टू स्पेंड दोस लॉकडाउन, दैट पर्टिकुलर लॉकडाउन पीरियड। बट व्हाट अबाउट दोस डेली वेजेस पीपल? वी डोंट वांट टू किल देम, वी डोंट वांट टू किल देम। राइट? So for them, we take risk. If actors are working, they are taking risk of their lives for those poor people actually. But it won't be appreciated somehow or the other. ये और जो ब्रॉडकास्टर है वो प्रोड्यूसर को थ्रेट करता है कि भाई मुझे तो फ्रेश कंटेंट चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें तो ये हो जाए। वो फिर आगे से यंग एक्टर्स को थ्रेट करता है, मैं आइंदा कास्ट नहीं करूंगा अगर आप शूटिंग पे नहीं आएंगे। सो एक फंसे हुए हैं सारे, किसी के पास कोई प्रॉपर रूट नहीं है हाउ टू डू। आप एसओपीज फॉलो नहीं कर सकते। पहली बात तो मैं ये बावर करवा दूं, अगर कोई कहता है कि हम एसओपीज फॉलो करेंगे और उनका बिल्कुल ख्याल रखेंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है।
क्योंकि तरह तरह के इलाकों से लोग आते हैं और रोज वापस जाते हैं। रोज वो हजारों लोगों से इंटरेक्ट होते हैं। आप डेली उनको चेक नहीं कर सकते, आप डेली उनको स्कैन नहीं कर सकते, आप डेली उनके टेस्ट नहीं करवा सकते। एक भी इन्फेक्ट होता है तो सब इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब सब जब इन्फेक्ट हो गए तो आपका प्रोड्यूसर 9,000 रुपया पर पर्सन के हिसाब से कभी टेस्ट नहीं करवाएगा। 15 से 20 लोगों का करवाएगा? नहीं करवाएगा। नहीं कर 2 लाख रुपया कहाँ से खर्चे? वो तो बचाने के चक्कर में आया हुआ है, तो वो कहाँ से खर्चेगा? सो कहने का मकसद ये है कि अब इस सिनेरियो सिचुएशन में सब फंसे हुए हैं। एक्टर्स भी को भी थ्रेट हो रहा है कि कम एंड वर्क एंड डू योर, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स आधे में रुके हुए हैं और उनका भी कंप्लीट होना जरूरी है। एक्टर्स को भी थ्रेट हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को भी थ्रेट हो रहा है बाय द चैनल्स, बट नोबडी इज। और मजे की बात ये है, चैनल इज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरा, वो कहेगा यार मैंने तो प्रोड्यूसर से कह दिया था, उसने अगर नहीं करना था तो वो ना करता। यू सी, nobody is ready in this country to take the responsibility. Everybody is putting a topi on other person. This is what is happening. So it is dangerous. हुआ है बहुत सारे लोगों को। हमारी यहाँ पे एक आर्टिस्ट है, उनके कजन को हुआ है। she got scared. She said, how can I work? Traveling from Lahore to Karachi is becoming an issue after this plane crash. A lot of fear is there. How will you do it? How is it going to happen? Okay, Noel bhai, on. I mean, first of all, I hope I didn't bore you with my session. I hope this was worth it. I hope I had made the right questions. हूँ तो मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, लेकिन मजा आता है कि कम से कम बिहाइंड द कर्टन वाली बातें की जाएं, टू वर्क ऑन सिस्टमैटिक इश्यूज. नॉट मेनी पीपल अप्रिशिएट इट, बट आई थिंक इट्स व्हाट द यंग पीपल शुड डू. जी बताएं, बोल रहे हैं कुछ आप? देखो यंग, पता है क्या, हमने जो सिस्टम बना दिया है ना राफिज, सॉरी आई नो यू माइट बी रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमने जो सिस्टम बना दिया है ना, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम यंगस्टर्स के लिए कुछ पॉजिटिव छोड़ के जा रहे हैं। मैं ये हर अरूज को सवाल है, मुझे भी एक दिन चले जाना है। तो मेरा जहां तक ख्याल है ना, मुझे दुख होता है कि मैं अपने यंगस्टर के लिए कोई अच्छी चीज नहीं छोड़ के जा रहा, मैं बर्बादी छोड़ के जा रहा हूँ, बुरे लोग छोड़ के जा रहा हूँ, उसके लिए नॉन प्रोफेशनल्स छोड़ के जा रहा हूँ जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। that's I mean, I hope हम कोशिश करेंगे कि हम उसको चेंज करें. But on the final thoughts, if anyone's watching, if any young talent is watching, any directors watching, any producers watching, some final thoughts from your end as to how we can make things better, or attempt to, even though it's as bleak as it sounds. We need few aggressive youngsters who believe in God, and we need some actually serious producers who are not afraid of anybody, and they are ready to take stand. We need unity in this nation. We need unity in our departments, actors की हो, चाहे वो producers की हो, चाहे वो कैमरामैन की हो, स्पॉट बॉयज की हो, क्रू के लोगों की हो। मैं चाहता हूं सबकी अपनी अपनी एक यूनियंस बने, ताकि अगर एक के साथ ज्यादती हो तो सब उसके साथ खड़े हों। हमें ये ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे और इन ग्रुप्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हम अपने निज़ाम को बेहतर करें। हमें अग्रेसिवली बात करनी पड़ेगी अपने हक के लिए, हमें अपना हक मानना पड़ेगा, हमें लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी हर हाल में। हम ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। जिस दिन लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन हो गई, जिस दिन बड़े आदमी को ये पता होगा ना कि मैं भी यहाँ से पकड़ा जा सकता हूँ और जवाबदेह हो सकता हूँ, उस दिन चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। चले, fair enough. That's a very, very positive note, and I hope that it gets come to that point, and we do see some light at the end of the tunnel. Nomi bhai, thank you so much. It's a beautiful work. Acting, I love acting. Acting is a beautiful work. Even behind the camera जितने काम होते हैं, उस सालों का अपना एक मजा नशा है। और मेरे ख्याल में टू क्रिएट समथिंग ऑन द स्क्रीन, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है। ये एक तो अल्लाह के हाथ में है टू क्रिएट, और फिर उसने थोड़ी सी इनायत इन लोगों को दी है। अगर इसको ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, दे कैन डू वंडर्स। 10 साल बाद आना था ये डिजिटल मीडिया पाकिस्तान में, 10 साल बाद आना था, लेकिन ये कोविड की वजह से वक्त से पहले आ गया है। अगर वक्त से पहले आ गया तो इसको
समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसमें छलांगे ना मारें, इसको समझें, अंडरस्टैंड करें कि दुनिया क्या मांगती है, किस तरह की गुफ्तगू मांगती है, किस तरह की चीज़ें मांगती हैं, अपने तय फैसला करके इसको बर्बाद मत करें। और पाकिस्तानी ड्रामा डिजिटल वाला ड्रामा नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, वो चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे एक्टिंग हो, सब सब चीज़ों के हिसाब से अगर दुनिया के साथ चलना है फिर दुनिया वाली हरकतें करनी पड़ेंगी। 100%. No, indeed, that was perfectly very well put. Thank you so much once again, Noi bhai, and I will be in touch with you. I hope to get to work with you. I want to work with you. लेकिन वो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन would love to, and I look forward to your web series. Let's pray for a better time. And यहाँ नहीं, कनाडा में नहीं तो पाकिस्तान में जरूर मुलाकात होगी. Please give my regards to your family. Keep in touch, and it's been a pleasure. Thank you. It's been a pleasure. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz.